All right, page 2, third level, vistas. We begin from Prabjot Singh. Start Prabjot Singh, start reading. मैम 1 मिनट बुक लेके आया. ओके, यश आप पढ़ना शुरू करो. यस मैम. मैम एक बार प्लीज पेज नंबर बता दो. जी बेटा, page 2. Anyway, here is what happened at Grand Central Station. Say we have to begin. The background of the story is that Charlie is a city dweller who wanted to rush back home, और वो जल्दी जल्दी में ट्रेन में जाना चाहता था, सबवे लेकर जाना चाहता था. He reached Grand Central Station. ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के अंदर हमेशा से 2 लेवल्स हैं. उसको ये मालूम था कि 2 लेवल्स हैं, लेकिन उसको he forgot the way and he reached the 3rd level and he thought that he was hallucinating, and the psychiatrist friend that he discussed his case with told him that he was unhappy in his life, which was not liked by his wife Louisa. यहाँ से अब रीड करो. anyway. Yes ma'am. Anyway, here's what happened at Grand Central. One night last summer, I worked late at the office. I was in a hurry to get uptown to my apartment, so I decided to take the subway from Grand Central because it's faster than the bus. शाबाश, वेरी गुड. आप तो बहुत अच्छा रीड करती हो. आप क्यों हेजिटेट करती हो रीड करने में? पहले किसको बोला था? पहले किसी को बोला था रीड करने के लिए? हम प्रभजोत को. प्रभजोत, बुक आ गई? आर्यन, रीड बेटा. Aryan, are you reading? Simarpreet? Are you reading, Simarpreet? Ma'am, with section 12 CE. 12E. Khushbu, are you reading, beta? Yes, ma'am, I'm reading. Okay. Start बच्चे, आगे करो जल्दी, टाइम वेस्ट हो रहा है बेटा. Can you please tell me Page 2. Now I don't where know I have to why read? this should have happened. Mute करके बोल रही I हो. got left in between. Okay, ma'am. Now I don't know why this should have happened to me. So he's saying Charlie is feeling very surprised कि ऐसा hallucination का incident, third level देखने का incident मेरे साथ ही क्यों हुआ? I am just an ordinary guy named Charlie, 31 years old, and I was wearing a tan gabardine suit and a straw hat with a fancy band. I passed a dozen men who looked just like me.
So what happened that he said that I am an ordinary person. मेरा नाम चार्ली है, मैं 31 years का हूँ, मैंने टैन गैबरडाइन सूट पहना हुआ था, स्ट्रॉ हैट पहनी हुई थी, और मैं बहुत सारे लोगों को क्रॉस करके जो मेरे जैसे लग रहे थे मैं वहां से गया, और मैं कहीं पे भी कुछ भी एस्केप करना नहीं चाहता था. मेरे मन में ऐसी कोई बात नहीं थी कि मुझे इस सिचुएशन में से अपने आप को एस्केप करना है. मैं तो सिर्फ अपनी वाइफ लुइजा के पास वापस जाना चाहता था. And I wasn't trying to escape from anything. I just wanted to get home to Luisa, my wife. Okay, next. दीपांशु आप रीड करो आगे. प्रभजोत आपने ऑन नहीं करा कैमरा, मैं फिर से रिमूव कर दूंगी आपको. मैम मेरे में ना ये इशू होता है हर बार की, जैसे ही मैं माइक ऑन करता हूँ वीडियो ऑफ हो जाती है अपने आप. अच्छा चलो कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड देयर कुड बी अ टेक्निकल इशू. आप बिगिन करो रीड करना. आई ट्रस्ट यू. Thank you, ma'am. I turned into Grand Central from Vanderbilt Avenue and went down the steps to the first level, where you take trains like the 20th century. चार्ली ने क्या किया, उसने टर्न करा, ग्रैंड सेंट्रल वेंडरबिल्ट एवेन्यू से उसने एंटर करा. पहले वो फर्स्ट लेवल के ऊपर गया जहां से 20th सेंचुरी की ट्रेन्स मिलती हैं. Then I walked down another flight to the second level, where the suburban trains leave from, ducked into an arched doorway heading for the subway and got lost. फिर मैंने क्या किया, चार्ली सेइंग, मैंने सेकंड फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स मैंने ली, सेकंड लेवल पर मैं पहुंच गया जहां से सब अर्बन ट्रेन्स जाती हैं. एक ऐसे आर्क वे था, मैंने उससे डक अपना सिर नीचे झुका के मैंने एंटर करा, और वहां जाकर मुझे रास्ता भूल गया, मुझे नहीं पता चला मैं कहाँ पर हूँ. That's easy to do. I've been in and out of Grand Central hundreds of times, but I'm always bumping into new doorways and stairs and corridors. सो ये बहुत ही इजी है इस तरह से रास्ता भूल जाना, नए रास्ते, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा सा स्टेशन है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स आई हैव लॉस्ट माय वे देयर, और मुझे बम्पिंग इनटू, मीटिंग सडनली, मैं नए से नए रास्ते एनकाउंटर करता हूँ. एक बार मैं एक ऐसी टनल में पहुंच गया जो कि 1 माइल लंबी थी, और चलते 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 मैं जहां पे पहुंचा वो रूजवेल्ट होटल की लॉबी थी. प्लीज रीड. Once I got into a tunnel about a mile long and came out in the lobby of the Roosevelt Hotel. Another time I came up in an office building on 46th Street, 3 blocks away. एक और बार ऐसा हुआ मेरे साथ कि मैं एक ऐसी ऑफिस बिल्डिंग पे पहुंच गया जो कि 46 स्ट्रीट पर थी, 3 ब्लॉक्स अवे, 3 ब्लॉक्स दूर थी वो. नेक्स्ट बच्चा अमनप्रीत, वीडियो ऑन करो और रीड करो. Are you there, Amanpreet? Yes, ma'am. Are you reading? मैम नेक्स्ट टाइम कर सकते हो मैम, मेरा अभी 2 प्रॉब्लम हो रही है नेटवर्क इशू. Okay. 2 मैम, इसके नेक्स्ट रीडिंग में Okay, करना. agreed, agreed, agreed. कोई भी इशू नहीं है. आप रीड करो बेटा, जसप्रीत. Sometimes I think Grand Central is growing like a tree.
pushing out new corridors and staircases like roots. So कभी कभी ही सेज मुझे ऐसे महसूस होता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक बहुत ही बड़े से ट्री के जैसा है जिसमें न्यू कॉरिडोर्स, न्यू स्टेयरकेसेस, रूट्स की तरह से हर दूसरे दिन मुझे कुछ ना कुछ नया रास्ता मिल जाता है. इट सीम्स जैसे ट्री की हमेशा ब्रांचेस, रूट्स जो है वो इंक्रीज होती रहती हैं, ऐसे ही ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की भी इंक्रीज होती रहती हैं. प्लीज. There's probably a long tunnel that nobody knows about, feeling its way under the city right now, on its way to Times Square and maybe another to Central Park. एक बहुत ही लॉन्ग टनल है जिसके बारे में किसी को नहीं मालूम. ऐसा लगता है जैसे कि वो अंडरग्राउंड टनल जो है वो बनती जा रही है. उसका एक रास्ता टाइम स्क्वायर की तरफ जाता है, दूसरा रास्ता उसका सेंट्रल पार्क की तरफ जाता है. And maybe because we're so many people through the years, Grand Central has been an exit, a way of escape. Maybe that's how the tunnel I got into, but I never told my psychiatrist friend about that idea. So what happened that Grand Central, because so many people, बहुत सारे लोगों के लिए बाहर चले जाने का, एग्जिट करने का ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक मीडियम है, एक रास्ता है. और मैं भी वहां पे एस्केप करना, एग्जिट करना, जो भी हम कर रहे हैं उसमें से बाहर निकल जाना. सो मैं भी वहां पर गया और मैं उस टनल में गया, लेकिन मैंने अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को इस टनल के बारे में कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था कि मेरा साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ये डिक्लेयर कर दे कि मैं मैनिएक हूँ, कि मैं क्रेजी हो गया हूँ, मेरा कंट्रोल खराब हो गया. हर्षित आगे रीड कर बच्चा. हर्षदीप आप करो. हर्षित का वो हो गया, वीडियो ऑफ हो गया. The corridor I was in began annealing left and slanting downward, and I thought that was wrong, but I kept on walking. So what happened, जिस कॉरिडोर के अंदर मैं था वो किस तरफ मुड़ने लगा, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर वो एंगल करने लगा और स्लांट कर रहा था डाउनवर्ड्स. और मुझे लगा कुछ तो ऑड है, कुछ तो गलत है यहाँ पे, लेकिन फिर भी आई केप्ट ऑन वॉकिंग, मैं चलता रहा वहां पर. All I could hear was the empty sound of my own footstep, and I didn't pass a soul. सिर्फ मुझे क्या सुनाई दिया, अपने ही पैरों के चलने की आवाज. जब हम चलते हैं तो हमारी ही अपनी आवाज जो है वो पैर चलने की आती है. सिर्फ मुझे वो एम्प्टी फुटस्टेप्स की साउंड सुनाई दी और एक भी पर्सन नहीं था, नॉट अ सिंगल सोल वाज देयर जो मुझे वहां पर मिलते. Then I heard that sort of hollow roar ahead that mean open space and open talking. सो उसके बाद मुझे एक तरह की हॉलो, खाली वाली जगह की रोर, बहुत जोर वाली आवाज सुनाई दी आगे, जिसका ये मतलब था कि आगे वाली जो जगह है वो ओपन है, स्पेस है, और फिर उसके बियॉन्ड लोग जो है वो बात कर रहे हैं. The tunnel turned sharp left. I went down a short flight of stairs and came out on the third level at Grand Central Station. सो क्या हुआ, टनल जो थी वो सडन लेफ्ट टर्न कर गई, शार्प लेफ्ट. आई वेंट डाउन, मैंने सीढ़ियां उतरी, शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, और मैं कहाँ पहुंच गया, मैं थर्ड लेवल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के ऊपर पहुंच गया. अपने हाथ में पेन पेंसिल्स रखो, जो सेकंड लेवल है और जो थर्ड लेवल है, जो उसके डिफरेंसेस हैं वो अभी आप मार्क करेंगे अभी इसके अंदर. For just a moment, I thought I was back on the second level, but I saw the room was smaller than. There were fewer tickets window and train gates, and the information booth in the central was wood and old looking. ओके, एक मोमेंट के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं वापस कहां पर पहुंच गया हूं, सेकंड लेवल के ऊपर. लेकिन देयर वाज अ डिफरेंस हियर. क्या थे डिफरेंसेस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेवल के अंदर? नंबर 1 डिफरेंस मार्क करो. देयर वर फ्यूअर, नो, फर्स्ट वन इज
The room was smaller. Number 2 is fewer ticket windows and train gates. Number 3 is information booth in the center was wood and old looking. Number 4 is जो मैन था बूथ पर he was wearing a green eye shade और उसने long black sleeve protectors पहने हुए थे. Number 5 is lights जो थी वो dim थी और flicker कर रही थी. और नंबर 6 इज इस पेज के ऊपर जो नंबर 6 है वो है ओपन फ्लेम गैस लाइट्स वर आल्सो देयर. प्लीज रीड बेटा, जो बच्चा रीड कर रहा था वो आगे रीड करे. And the man in the booth wore a green eye shade and long black sleeve protector. The lights were dim and sort of flickering. Then I saw why they were opening glass light. और फिर मैंने देखा क्यों फ्लिकर कर रही थी, क्योंकि they were open flame gas lights, that is why they were flickering. Very nice बच्चे. Aruni, you have to read now. There was a brass spittoon on the floor, and across the station glints of light catch my eye. A man was pulling a gold watch from his vest pocket. Okay, number 7 is brass spittoons. स्पिट करते हैं जिसके अंदर, जिसमें थूकते हैं, स्पिट करते हैं. ब्रास का था वो, ब्रास स्पिटून्स ऑन द फ्लोर. नेक्स्ट नंबर इज a man pulling gold watch from his vest pocket. Please read. He snapped open the cover, glanced at his watch and frowned. क्या करा उसने? स्नैप ओपन करना, किसी चीज को एकदम से सडनली स्नैप करके ओपन करना. कवर को उसने ओपन किया, ग्लैंस करना, लुक करना. किसको देखा उसने? वॉच को उसने देखा और उसको ऐसे उसने फ्राउन करा, गुस्सा करा उसने. He wore a derby hat, a black 4-button shoe with tiny lapels, and he had a big black handlebar mustache. अब ये वाला जो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7 और 8 जो भी तुम सीक्वेंस के अंदर मार्क कर रहे हो, वो इस पर्सन का ड्रेसिंग स्टाइल है. इसको ऐसे ब्रैकेट करके कॉर्नर के अंदर लिख लीजिए, ड्रेसिंग स्टाइल. जो ये ड्रेसिंग स्टाइल था ये पुराने जमाने का था, ये डिफरेंट था. कैसा था? उसने पहना हुआ डर्बी हैट पहनी हुई थी, ब्लैक 4-बटन सूट, टाइनी लेपल्स. ये जो यहाँ पे कोट के ये वाले सारी थिंग होती है, दैट इज कॉल्ड लेपल. जो उसने लेपल्स थे वो छोटे थे. उसकी बिग ब्लैक हैंडल बार मूछें थी, मुस्टैच थी उसकी. Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 1890 something. I never saw so many beards, sideburns, and fancy mustache in my life. So this also is point, next point number 9, कि लोग जितने भी थे ना वहां पे, उन लोगों का सबका ही जो मुस्टैच था और जो उनका फेस के ऊपर उन्होंने बियर्ड रखी हुई थी, उसका स्टाइल डिफरेंट था, डिफरेंट देन द थिंग व्हिच वाज देयर. जो यूजुअली वो आराम से अपने आसपास में देखता था चार्ली, उससे वो बहुत पुराने जमाने वाला था. क्या था वहां पे? उसके अंदर साइड बर्न्स थे, फैंसी मुस्टैचेस थी, इतने सारी इस तरह की, जैसे कि 1890 समथिंग के अंदर वो पहुंच गया हो. ऐसी वाली ड्रेसिंग स्टाइल, ऐसे वाली उसने कभी पहले देखा नहीं था. A woman walked in through the train gate. She wore a dress with a leg of mutton sleeves and skirts to top of her high-buttoned shoes. एक वुमन ने वॉक करा थ्रू दी ट्रेन गेट. उसने ड्रेस जो पहनी हुई थी वो कैसी थी? लेग ऑफ मटन स्लीव्स एंड स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज. हर ड्रेसिंग अप इज आल्सो, हर ड्रेसिंग स्टाइल इज आल्सो 10 नंबर पॉइंट. आपको लॉन्ग आंसर में ये वाले सारे पॉइंटर्स पूछे जाते हैं,
6 मार्क्स के अंदर। अरुणी, आपके घर से ना बैकग्राउंड में जो आवाज आती है, आप उन्हें बोलो कि मत बात करें, क्लास है ना ये हो रही इस वक्त। सो आपने क्या करना है, आपने उसको याद रखने के लिए अपनी नोटबुक के अंदर डिफरेंसेस बिटवीन अदर लेवल्स एंड थर्ड लेवल, उसकी पूरी लिस्ट बना लेनी है आपने। यस बेटा। Back of her out on the tracks, I caught a glimpse of a locomotive, a very small carrier and eaves of locomotive with a funnel-shaped stack, and then I knew. वो जो एक हाई बटन शूज वाली वुमन को मैंने देखा, उसके बैक पे मैंने ये बात को देखा, आउट ऑन द ट्रैक्स, मुझे एक झलक नजर आई। किसकी? मुझे, आप अपना प्लीज म्यूट कर लीजिए अरुणी। मुझे किसकी झलक नजर आई? मुझे ग्लिम्प्स नजर आया एक लोकोमोटिव का। दिस इज पॉइंट नंबर 12। कैसा लोकोमोटिव वो था? स्मॉल करियर एंड आइव्स लोकोमोटिव, जिसकी फनल शेप्ड स्टैक थी, और मुझे पता लग गया, आई न्यू। क्या पता चल गया? कि मैं थर्ड लेवल में पहुंच गया हूँ, मैं फर्स्ट सेकंड लेवल के ऊपर नहीं हूँ, मैं टाइम मशीन से पुरानी वाली जिंदगी के अंदर चला गया हूँ। मुझे नहीं पता मैं कैसे पहुंच गया, बट आई रियलाइज्ड दैट मैं वहां पर पहुंच गया हूँ। गुरमीत कौर, प्लीज रीड बेटे। गुरमीत म्यूट किया हुआ है शायद। देयर इज नो साउंड बच्चे, देयर इज नो साउंड। आप एडजस्टमेंट करो, हम हरकीरत के बाद आपके पास वापस आते हैं। यस बेटा हरकीरत। To make sure, I walked over to a newsboy and glanced at the stack of papers at his feet. So this is It was the World, and the World hasn't been published for years. ओके 13 नंबर पॉइंट है ये। टू मेक श्योर कि मैं पुराने वाले जमाने के अंदर पहुंच गया हूँ, मैंने क्या करा? मैं और आगे बढ़ा, मैंने देखा एक न्यूज बॉय है। वो जो न्यूज बॉय है उसके पास में पूरा स्टैक था, पाइल थी न्यूज़पेपर्स की। मैंने उसके ऊपर ग्लैंस करा, उसके पैरों में जो न्यूज़पेपर पड़े थे उसका नाम था दी वर्ल्ड। जो वर्ल्ड न्यूज़पेपर है उसको पब्लिश हुए कई साल हो चुके हैं। The lead story said something about President Cleveland. I found that front page since in the public library files, and it was printed June 11, 1894. जो लीड स्टोरी थी वो किसके बारे में थी? प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में थी। मैंने ये वाली स्टोरी को ऑलरेडी देखा हुआ है। कहाँ देखा हुआ है मैंने इसको देखा हुआ है फ्रंट पेज को पब्लिक लाइब्रेरी की फाइल्स के अंदर। मैंने वहां जाकर उसकी डेट देखी। क्या डेट थी उसकी? जून 11, 1894। बेटे गुरमीत हो गया आपकी एडजस्टमेंट बच्चे? There is no sound. Yes, ma'am. Yes, now it is okay. चलो बोलो। I turned toward the ticket windows, knowing that here, on the third level at Grand Central, I could buy tickets that would take Louisa and me anywhere in the United States we wanted to go. मैंने टर्न करा टूवर्ड्स टिकट विंडोज। मुझे पता चला, मैंने महसूस किया कि थर्ड लेवल एट ग्रैंड स्टेशन पे मैं टिकट खरीद सकता हूँ अपने लिए और अपनी वाइफ लुइजा के लिए, कि हम यूनाइटेड स्टेट्स में कहीं पर भी जा सके, वो जिंदगी जी सके जो कि निकल चुकी है और जो हम हमेशा याद करते रहते हैं। ओल्ड टाइम्स को हम रीलिव कर सके। In the year 1894, and I wanted 2 tickets to Galesburg, इलिनॉइस Illinois. जगह का नाम है।
गेल्सबर्ग कहाँ पर है? Illinois. गेल्सबर्ग इलिनोइस के अंदर है। मैं 2 टिकट्स चाहता था 1894 की जिंदगी के अंदर जाने के लिए। कहाँ पे जाना है मुझे? गेल्सबर्ग में जाना है, इलिनोइस के अंदर मुझे जाना है। गुरसिमरन, Have you ever been there? It's a wonderful town still, with the big old frame houses, huge lawns, and tremendous trees whose branches meet overhead and roofs of the trees. Streets. so he is asking, the narrator of the story is asking कि क्या आप कभी इलिनोइस के अंदर गेल्सबर्ग में गए हैं? वहां पे बहुत ही वंडरफुल टाउन है जिसमें बहुत बिग बिग वाले फ्रेम हाउसेस हैं, ह्यूज लॉन्स हैं और ट्रेमेंडस ट्रीज हैं, वेरी बिग ट्रीज। इतने बड़े ट्रीज हैं कि ये ट्री और ये ट्री यहाँ से ग्रो करते 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 उनकी ब्रांचेस जो है वो एक दूसरे के साथ में मिल जाती हैं, पूरी वो कैनोपी बना देते हैं रास्ते के अंदर। इट इज सच अ ब्यूटिफुल साइट टू बी देयर। And in 1894, summer evenings, they were twice as long, and people sat out in their lawns, the men smoking cigars and talking quietly, the women waving the leaf fans with the fireflies all around, in a peaceful world. ओके, सब फायरफ्लाइज जुगनू होते हैं। वो वाले जमाने के अंदर जब सारी दुनिया के पास में बहुत टाइम होता था जिसके अंदर हम अच्छे से जिंदगी गुजार सकते थे, वो वाले टाइम के अंदर ही इज टॉकिंग 1894 में, इसलिए क्योंकि पीपल हैड टाइम, दैट इज व्हाई समर इवनिंग्स वर क्वाइट लॉन्ग, ट्वाइस एज लॉन्ग एज दे आर नाउ। पीपल अपने लॉन्स के अंदर बैठते थे, एंजॉय करते थे, मेन स्मोकिंग सिगार्स, विमेन वेविंग पाम लीफ से फैन करती थी अपने आप को, और सारे टाइम आसपास नेचुरल ब्यूटी जो थी वो बहुत ही ज्यादा एनवायरनमेंट को अच्छा बना देती थी। फायरफ्लाइज, आज वाले आपको बच्चों को तो पता भी नहीं होएगा कि फायरफ्लाई क्या होती है। देखा है कभी जुगनू किसी ने? आप लोगों में ने किसी ने Yes, देखा है? ma'am. यस, अच्छा, Yes, वेरी ma'am. गुड, वेरी नाइस। ओके, मुझे लगा इस जनरेशन को तो फायरफ्लाई का कॉन्सेप्ट ही नहीं होएगा। वेरी गुड, प्लीज। To be back there with the First World War still 20 years off, and World War II over 40 years in the future, I wanted 2 tickets for that. उस लाइफ के अंदर जाना, उस वाली टाइम के अंदर जाना जहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी नहीं हुई अभी तक। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को होने में 20 इयर्स बचे हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर को होने में 40 इयर्स बचे हैं। मैं डेफिनेटली वहां पे उस लाइफ में फिर से जाना चाहता था। किसके साथ? अपनी वाइफ के साथ। इसलिए मुझे हाउ मेनी टिकट्स डिड आई वांट? आई वांटेड 2 टिकट्स। सो दिस वाज इट। यहाँ तक हमने आज करा। जो नहीं, जिनको आज चांस मिला उन्हें कल चांस देंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ अपने फ्रेंड्स को बोलो कि वो क्लास अटेंड करें। दे विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग्स अगर वो लाइव इसके अंदर सेशन के अंदर आते हैं तो। थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो, बाय बाय।